Earnings conference call. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on beliefs, opinions, and expectations of the day of the company as on the date of this call. And involves risk and line an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Vista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you, and good evening, everyone. On behalf of Surya Roshni Limited, I extend a very warm welcome to everyone for joining us today. On this call, we are joined by Mr. B.B. Singhal, CFO and Company Secretary, Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel Division, Mr. Jitendra Agrawal, CEO, Lighting and Consumer Durable, Mr. Gaurav Jain, Executive Director and COO for the Steel Operations, Mr. Vashu Mitra Pandey, COO, Lighting and Consumer Durable, and SJ, our Investor Relations Advisor. Moving on to the overall financial performance highlights. We are pleased to present our performance highlights which demonstrate our company resilience and operational strength in a challenging market environment. For Q4 FY25, our consolidated revenue grew by 3% year-on-year to 2146 crore, and EBITDA registered a strong growth of 22% year-on-year to rupees 211 crore. The EBITDA margin expanded by 155 basis points. Tax increase is 130 crore. For the full year FY25, revenue stood at 7,436 crore, down 5% from the previous year. Despite this, revenue slightly declined mainly on account of HR Coil. EBITDA improved by 4% to 600. EBITDA in full year to 8.19, 465 crore rupees, and PAT increased by 5% to rupees 347 crore. The strong performance this quarter and year reflect the efficiencies of our strategy despite a 5% decline in the revenue for the full year, which was due to the average reduction in HR Coil price. We have demonstrated our ability to enhance profitability through operation efficiencies across both business segments. Better products mix and focus on value-added products, improved realization in our steel pipe division, consistent growth in our lighting and consumer durable segments, and effective cost reduction measures and improve overall operating leverage. Now we are a zero debt company with a net cash surplus of 342 crore as on March 31st, 2025. We have also declared a final dividend of 3 rupees per share, demonstrating our ongoing commitment to delivering shareholder value, and this is in addition to the interim dividend of 2.5 rupees per share pre-bonus capital already distributed. So total is 170% in FY25. Now coming to lighting and consumer durable, our lighting consumer durable business had delivered a healthy performance despite significant industry challenge, including continuously price erosion, currency fluctuation, and input cost pressures. Our strategy
Eligity, product innovation and operation discipline have enabled us to achieve consistent growth while safeguarding our profitability. Throughout the year, we implemented proactive cost control measures, executing value engineering initiatives, conducted frequent negotiations with our suppliers, and improved productivity in our plants. These efforts help mitigate impact beyond our control, such as dollar fluctuation, commodity price, etc. On the market side, we enhance our focus on semi-urban market, which grew faster than urban markets. We incentivize our sales team and channel partner to promote our premium product as well. We are also entering now to the domestic wiring cable market, driven by a very strong demand from our channel partners. We have planned and investment of rupees 25 crore, and we are targeting approximately 100 crore in the FY26 itself, and about 500 crore of revenue in next 3 years. Leveraging our strong presence in over 3 lakhs electrical retail outlets across the country and our robust electrician engagement program conducted quarterly. We are targeting double-digit revenue growth for the lighting and consumer durable in FY26. We remain confident in our ability to deliver sustainable and profitable growth, leveraging our strong brand presence, extensive distribution network, and innovative product portfolio. Now, coming to the steel pipe segment, in Q4 FY25, our steel pipe and strip segment achieved sales volume in FY25 Q4, which was about 2.67 lakh ton, representing a robust 9% year-on-year growth in terms of volume. And for the full year 25, our total volume reached to 8.8 lakh ton, marking the highest annual volume in the company history. This exceptional performance underscores strong market demand, particularly in the latter half of the year. Revenue for Q4 FY 688 crore and increase compared to Q4 FY24, and a significant 25 crore compared to 24, reflecting an 8% decrease primarily due to lower HR coil price during the earlier part of the year. Our EBITDA of Q4 FY25 reached to 164 crore in steel division, showing a substantial 28% year-on-year growth and an impressive 48% increase on a quarter-on-quarter basis. The EBITDA Q4 of FY25 stood at rupees 6,708 rupees, a 14% improvement compared to 5,877 63 in Q3 FY25. And for the full year of FY25, EBITDA was 446 crore, a 2% increase over FY24, with EBITDA per ton at rupees 5,400, broadly stable compared to FY24. This remarkable growth in profitability, especially in Q4, was driven by a favorable product mix with higher contribution from value-added products, operational efficiencies, and increased production volume, leading to the lower per unit cost by leveraging fixed expenses.
Value-added product, including API, spiral, and galvanizing pipes, constitute of about 44% of our total revenue in both Q4 FY25 and the full fiscal year. This product mix has significantly contributed to our improved margins. In the export market, a significant opportunities lies in the U.S. market for the API oil and gas 5CT pipes, which also known as a catching and tubing pipe for oil exploration, where the favorable duty at reduced rate from approximately 19% to 2.3% will be applicable on the company. So we are targeting about 20,000 metric ton of quantity from this year itself. Our spiral production facility in Gwalior commenced operation in February 25 with a significant ramp up expected by early June 25. Additionally, production has started to our cold rolling project in Bahadurgarh as well, with full ramp up expected by the end of this month, May 25 itself. Looking at our future capital expenditure plan, we are outlined a 500 crore capex plan over the next 2 years, with approximately 250 crore allocated for our upcoming greenfield projects, 125 crore to Hindupur facility, with commissioning expected by the end of FY26, and the remaining for the DFT plant in Gujarat and other strategic initiatives. Looking ahead for FY25, we are targeting to cross at least 1.1 million ton in sales volume. We expect our EBITDA per ton to improve further, targeting 5,800 rupees to 6,000 rupees in FY26. Now I will request our B.B. Singhal, Group CFO, to share his thoughts on the numbers. Thank you, respected MD sir, and very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was 2,146 as compared to 2,080 crore, as a growth of 3% year-on-year basis. EBITDA and PAT stood at rupees 211 crore and rupees 130 crore as compared to 173 crore and 104 crore, a growth of 22% and 25% respectively. For FY25, the revenue was rupees 7,436 crore as compared to 7,809 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 609 crore and rupees 347 crore as compared to rupees 586 crore and rupees 329 crore respectively. In lighting and consumer durable, for the quarter, the revenue stood at rupees 458 crore as against 418 crore, a growth of 10% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 47 crore and rupees 37 crore, a growth of 6% and 3% respectively. For FY25, the revenue stood at rupees 1,690 crore as against 1,572 crore, a growth of 8% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 162 crore and rupees 125 crore, a growth of 8% and 4% respectively. In the steel pipes and strips, during Q4 FY25, the revenue was 1,688 crore as compared to 1,665 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 6,708 compared to rupees 5,877, a growth of 14% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 164 crore and rupees 138 crore, a growth of 28% and 34% respectively. For FY25, the revenue was 5,749 crore as compared to 6,242 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 5,392 compared to 5,401. EBITDA and PBT stood at rupees 446 crore and rupees 341 crore, a growth of 2%
and 5% respectively. Improved capacity utilization, working capital optimization, and cost rationalization enabled us to become a zero debt company and having cash surplus fund of rupees 342 crore in FY25. As of March 31, 25, our net working capital cycle was 55 days with a return on capital employed ROCE of 20.96% and a return on equity ROE of 14.97%. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you very much, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets only while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. I repeat, if you wish to ask a question, you may press star and one. We have our first question from the line of Jatin Damania from Swan Investments. Please go ahead. Good evening, sir, and thank you for the opportunity. So first of all, congrats on the numbers and thank you. Sorry to interrupt, Mr. Jatin. Can you please use your handset? Now it's Yeah. So first of all, congrats on a good set of numbers and thank you for increasing the dividend payout. So one thing that I wanted to understand now, when you are guiding a volume of 1.1 million ton for next year, so once our Hindpur facility will come in operational, what type of cost saving one can assume on the overall number? Okay. So only one question. So once we commence our Hindpur facility, because last year we indicated that probably in second half of FY26, our Hindpur facility will come in operation with a substantial amount of cost saving that we will get it. So annualized cost savings once the Hindpur facility comes in operation? So overall, Jatin जी, टोटल हमने करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, जिसमें 250 करोड़ तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ही हम जो है कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं. तो वो भी ओवरऑल हमारा EBITDA मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. और क्योंकि क्या है, हमारी फिक्स कॉस्ट तो उतनी है, तो फिक्स कॉस्ट कम होता है ऑटोमेटिकली, उसके कारण जो है हमको एक एडवांटेज मिलता है. तो मतलब एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में करीब जो है 250 से 300 रुपये पर टन का जो है इम्प्रूवमेंट दिखेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर. और सर हमारी जो वहाँ कैपेसिटी है वो करीबन करीब 1 लाख टन की कैपेसिटी आ रही है. हाँ, मतलब ऐसा है कि हमारी देखिए ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में अभी हम लोग जैसे 1.2 मिलियन का है, तो 1.9 मिलियन ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी नेक्स्ट 3 इयर्स. सो उसमें 50% कैपेसिटी तो एग्जिस्टिंग प्लांट में है, जिसका जो है करीब 50% कैपेसिटी इस साल के एंड तक आ जाएगा और बैलेंस 50% नेक्स्ट ईयर आ जाएगा. फिर उसके बाद जो है मतलब बैलेंस का आ जाएगा. तो ओवरऑल जो है हिंदुपुर में 1.5 लाख टन का जो है एनुअल कैपेसिटी हमारी हो जाएगी इसके बाद. अच्छा, ये जैसे आप बोले कि कैपेसिटी डबल हो जाएगी, तो आप ब्रेकअप दे दोगे ये कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे आ रही है और ग्रीनफील्ड हम कहाँ पे लगा रहे हैं? सो देखिए, जैसे क्या है कि एग्जिस्टिंग बहादुरगढ़ जो फैसिलिटी है उसके अंदर में जो है करीब 1.36 लाख टन का जो है हमारा एनुअल कैपेसिटी में एनहांसमेंट रहेगा. 1 लाख टन पाइप में और 36,000 टन साल का जो है वो कोल्ड रोलिंग में ये कैपेसिटी एनहांसमेंट आ रही है. दूसरा जो ग्वालियर हमारी फैसिलिटी है उसके अंदर में जो है हमने स्पाइरल प्लांट लगाया, वो ऑलरेडी कमीशन हो गया है. उसमें 60,000 टन का एनुअल कैपेसिटी में एनहांसमेंट है. और भुज के अंदर में जो है एक हम DFT लगा रहे हैं
वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। प्लांट मशीनरी वगैरह ऑलरेडी ऑर्डर हो गया है इम्पोर्टेड, तो उसमें करीब जो है 60,000 टन की कैपेसिटी इनहांस हो रही है। इस साल के एंड तक ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और हिंदूपुर के अंदर में जो है एक नया डीएफटी और कुल मिला के हम लोग 5 नए प्लांट लगा रहे हैं पाइप के। और एक जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है, मतलब उसका हमारी प्लानिंग चल रही है। अभी 2-3 लोकेशन पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हिंदूपुर का जो फैसिलिटी है एडिशनल हमने प्लांट वगैरह तो वहाँ परचेज कर ली। तो बॉम्बे वाइजैक का 1-2 जगह पे हमारी अभी भी जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए हमारी डिस्कशन ऑन है। सो करीबन करीब अपनी फैसिलिटी जो है 2.5 लाख टन की नहीं आएगी और हिंदपुर में 1.5, तो करीबन करीब 4-4.5 लाख की नई कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। और जो ग्रीन फील्ड वाली आ जाएगी उसकी करीब 3 लाख टन की कैपेसिटी रहेगी। ओके, तो 4 और 3 7 करीबन करीब 2 मिलियन टन की हमारी पूरी कैपेसिटी हो जाएगी 27 के एंड तक। कैपेसिटी हो जाए। हाँ सर जी, अभी हमने गाइडेंस हमने दी है 1.1 और हम बोल रहे हैं कि यूएस में 20,000 एक्सपोर्ट करेंगे। सो हाउ कॉन्फिडेंट आर वी इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दिस नंबर? देखिए, मतलब ओवरऑल जो है, मतलब कंसिस्टेंटली हम अगर आप देखेंगे, एक्चुअली क्या है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में तो हमारी 85% के आसपास जो है हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। इनफैक्ट जो नया प्लांट स्पाइरल का लगा या जो डीएफटी भी लगी वो भी 85% के आसपास ऑलरेडी है। और जो ये अमेरिका के अंदर में जो हुआ, क्योंकि जो केसिंग और ट्यूबिंग जिसको 5 सिटी लाइन बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेनली यूज होता है, उसमें करीब 19% का जो है हमारा उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी थी। और ओरिजिनली हमने एक 5 सिटी के लिए स्पेशल मिल भुज में लगाई थी फॉर दिस पर्पस ओनली, बट जब तक वो मिल कमीशनिंग में आता तब तक हमारे ऊपर एंटी डंपिंग आ गई थी, तो हम वो केस जीत गए और हमारे फेवर में रहा। उसमें 2.3% रहेगा, तो एक बहुत बड़ा कई मिलियन टन का मार्केट है वो तो इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो वो एडिशनली मतलब हमारे को ऐड करेगा। सो ओवरऑल जो है, जो हम कैपेसिटी बोल रहे हैं 1.1 मिलियन, वो मतलब आराम से अचीव हो सकता है विद दिस अमेरिका मार्केट। और इनफैक्ट ट्रेड और कोल्ड रोलिंग के अंदर में भी हमने फैसिलिटी करीब 15% से हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। सो ऐसा हम ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% के आसपास की हमारी ग्रोथ जो है इस साल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रहेगी। ओके, और सर हम कितना कैपेक्स करेंगे अगले ये साल? हमारा जो है मतलब इस साल हमारी कैपेक्स करीब जो है 125 से लेकर के 150 करोड़ का रहेगा। ओके, 125 से 150, मतलब मोटा मोटी ये हिंदपुर के लिए जो बड़ा सा कैपेक्स है। हाँ हाँ, और बाकी ग्वालियर और इसका मोटा मोटा हो गया है, मतलब बहादुरगढ़ का। हाँ, और सर अगर हम लाइटिंग की बात करें, आप बोल रहे हैं कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ करोगे, तो मतलब मोटा मोटी 1890 करोड़ का हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ये जो वायरिंग केबल मार्केट है, हाउ कॉन्फिडेंस वी आर कि पहले ही साल में हम 100 करोड़ की रेवेन्यू कर लेंगे, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी? नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, मतलब 100 करोड़ भी तब है जब हम जून में ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो 8 महीने में 100 करोड़ का है। और ये मार्केट जो है, मतलब इसमें देखिए, एक सूर्य के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग हमारे इलेक्ट्रिकल आउटलेट है वो 60% से ज्यादा ऑलरेडी इस प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं। सो पिछले 2-3 सालों से काफी टाइम से जो है हमारी ये डिमांड थी चैनल पार्टनर्स की कि हमको दूसरे कंपनी को डील करना पड़ता है, हमको टर्नओवर डिस्काउंट में भी लॉस होता है, तो अगर एक ही कंपनी से डील करेंगे तो हमें उस चीज का एडवांटेज होगा, ऐसा चैनल पार्टनर का भी था। और ये डोमेस्टिक वायर है, इसमें कोई रिप्लेसमेंट का झंझट भी नहीं है और प्रोडक्शन भी बहुत इजीली बन जाता है। ऑलरेडी हम लोग प्लास्टिक और पीवीसी पाइप तो बनाते ही हैं, तो इसमें थोड़ा परचेज कॉपर साइड में थोड़ा इश्यूज रहता है, अदरवाइज बहुत इजी, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट भी नहीं है। और इसमें जो है हम लोग ने इस साल 100 करोड़ करने का सोचा है, और ओवरऑल इसका मार्केट साइज जो है वो लाइटिंग से भी ज्यादा बड़ा है। तो मतलब 500 करोड़ रुपया 3 साल में मतलब इजीली अचीवेबल है। और लाइटिंग के अंदर में भी मोर और लेस अब मतलब मार्केट में जो आप देख रहे हैं प्लेयर जो बचे हैं, बहुत ज्यादा जो है अभी प्राइस की बात नहीं हो रही, जिनकी नेटवर्क और रीच है उस हिसाब से काफी हद तक लाइटिंग इंडस्ट्री भी जो है स्टेबल हो चुकी है।
तो मतलब लाइटिंग इंडस्ट्री में अब जैसे आपने एक बात और कही थी, मार्जिन जहाँ तक रहेगा 6% के आसपास का EBITDA रहेगा, इसीलिए हम पूरे साल में ऐसा मान के चलिए कि लाइटिंग में 1960 करोड़ के आसपास का हमारा टॉप लाइन एक्सपेक्टेड नंबर्स रहेगा और 10.5% के आसपास जो है EBITDA मार्जिन हमारी रहेगी, जो 185 के आसपास 190 करोड़ के आसपास रहेगी। राइट, सर थैंक यू फॉर आंसरिंग। सर लास्ट क्वेश्चन ऑन द बुक कीपिंग क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं कि हमने करीब 8.8 लाख टन माल बेचा ये साल, पर अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आपका EBITDA जो है स्टील बिजनेस का पूरे साल का 446 करोड़ है और हमने 5,400 रुपये EBITDA पर टन बनाया है, तो अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 8,20,000 के आसपास का वॉल्यूम आ रहा है, तो सर ये डिफरेंस कहाँ से है? नहीं, ये फ्रेश और ग्रोस पाइप के हिसाब से है। ओके, नहीं, EBITDA कैलकुलेशन फ्रेश पाइप पे होता है वो, इसीलिए। ओके, क्योंकि रिजेक्शन भी होता है ना। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1. We have our next question from the line of Viraj Mehta from Enigma Capital. Please go ahead. Yeah, hello sir. Sir, my first question is regarding the volume growth. आपने पहले इस साल बोला था कि अपन ज़्यादा कर लेंगे, पर अपन 8.8 लाख कर पाए बिकॉज आपने बोला इलेक्शन में प्रॉब्लम था। पर सर आप जो इस साल 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हो 8.8 लाख से 1.1 मिलियन, सर हिस्टोरिकली हमारा ग्रोथ इतना रहा नहीं है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि हम इतना ग्रोथ कर लेंगे? नहीं, ऐसा है, 2-3 चीजें हैं जो हम कैपेक्स कर रहे हैं, वो वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं। दूसरा जो है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर में 2-3 कंट्री और ऐड हुए हैं, और जैसा मैंने अभी कहा कि यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, ये हमारे लिए जो है मतलब खुल गया है इस साल से। और मतलब हमारे काफी जगह पे बोटल नेक बनी हुई थी, उसको डी बोटल नेक भी किया है सभी यूनिट्स के अंदर में। और मतलब हमें ऐसा लगता है कि 20% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ जो है हम इजीली कर लेंगे, और वो फोर्थ क्वार्टर से वो इम्प्रूवमेंट दिखने भी लगा है। और जो एक जनरल इलेक्शन के एटमॉस्फेयर था उससे निकल करके अब वो भी एक प्लस पॉइंट दिख रहा है। और गवर्नमेंट भी अपना प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा एपीआई के ऑर्डर्स वगैरह नहीं थे, स्पाइरल फैसिलिटी आते आते थोड़ा टाइम लग गया था। तो जो अमरूद स्कीम और हर घर जल स्कीम वो भी गवर्नमेंट 2028 तक उसको चालू रखेगी, और एपीआई के अंदर में भी अगले 3-4 साल में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो बहुत ऐसा मार्केट में डिमांड है, हम थोड़ी सेलेक्टिव है, एक तो कैपेक्स के कारण, दूसरा क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमारा सप्लाई में प्रॉब्लम थी, डिमांड तो थी बाजार में। नहीं, दोनों बातें हैं। लास्ट ईयर तो डिमांड भी थोड़ी कम थी, और एपीआई सेगमेंट में 2 साल में थोड़ी डिमांड कम थी। मार्केट में डिमांड भी दिख रही है, और हमारे जो बोटल नेक थे उसको हम पार कर गए हैं। ओके सर, ओके सर, मेरा दूसरा सवाल है कि इस क्वार्टर स्टील में अपना इन्वेंट्री गेन कितना हुआ होगा? नहीं, ऐसा है कि हमारे केस में जो मैं पहले भी बताता था, हमारा काफी ऑर्डर मतलब मंथ ऑन मंथ चलता रहता है। तो फिर भी जो है इस क्वार्टर के अंदर में करीब जो है 30 से 35 करोड़ रुपया जो है हमारा इसके अंदर में एचआर खोल के। राइट, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि अपन जो 6,800 रुपये बता रहे हैं EBITDA पर टन इस क्वार्टर का, अगर मैं 30 से 35 करोड़, अगर मैं 30 करोड़ भी माइनस करता हूँ, तो अपना स्टेबल EBITDA पर टन देन 5500-5600 रुपया इस क्वार्टर। ये सही समझ है मेरी? एकदम सही है। ऐसा है कि देखिए कुछ ना कुछ फैक्टर तो हर क्वार्टर में रहेंगे। हाँ, नहीं, जैसे आपने Q2 में लॉस भी किया था इन्वेंट्री, मैं समझता हूँ वो बात। ओवरऑल हमारी जितनी प्रॉफिट करने के लिए आप पीएस में जाएंगे 3 टाइम्स वॉल्यूम करना पड़ता है, या 3.5 टाइम्स वॉल्यूम करना पड़ता है। तो मतलब हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ फैक्टर रहता है, आप राइटली मेंशन कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं इस साल भी पूरे साल का हमारा EBITDA पर टन जो है
5,800 से 6,000 करोड़ के आसपास, 6,000 रुपए के आसपास रहेगा। राइट। एंड सर मेरा आखिरी में ग्रोथ आएगा ना, आप देखेंगे ये जो मैं 20% ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, उसमें 10 से 12% ग्रोथ वो है जिनका एबिटा मार्जिन 9,000 से 10,000 रुपए रहता है। एपीआई बेसिकली, एपीआई और स्पाइरल एक्सपोर्ट दोनों। ठीक है, ठीक है सर। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप प्लीज करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, बट आपने बोला 1.2 मिलियन, सॉरी, पर अपन अगर 1.1 मिलियन भी लेते हैं और 5,800 पकड़ते हैं तो अपना 630 करोड़ का एबिटा पाइपिंग में हो जाएगा, और अपना 200 करोड़ का एबिटा अपने लाइटिंग में बोला, तो अपना 800 850 करोड़ के बीच में एबिटा नेक्स्ट ईयर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मतलब 780 करोड़ से जो है 800 करोड़ के आसपास का एबिटा नेक्स्ट ईयर का है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर हम FY 24 के अंदर में भी Q2 के अंदर में बहुत शार्प डिक्लाइन था HR कोल के अंदर में, और मैंने इसी कॉन कॉल में लास्ट 2 कॉन कॉल में कहा था कि 580 करोड़ का हमारा जो FY 24 का था, एटलीस्ट उसको तो हम मेंटेन करेंगे। सबको डाउट लग रहा था इतना होगा क्या, क्योंकि Q2 और Q3 थोड़े खराब गए थे। अगर वो Q2 उसी लाइन में चलती तो आज भी हम जो है 700 करोड़ प्लस करते। तो अगले साल ये मान के चल रहे हैं 780 से 800 करोड़ के आसपास का हमारा एबिटा रहेगा। तो सर मेरा खाली यही क्वेश्चन है कि जैसे अपने पास 350 करोड़ कैश पड़ा हुआ है और अपन 800 करोड़ नेक्स्ट ईयर एबिटा करने की बात कर रहे हैं, और अपना केपेक्स तो जो आपने बताया वो उतना ही है, 200 करोड़ 250 करोड़ साल का, तो बाकी कैश का आप क्या करेंगे? आप डिविडेंड बढ़ाएंगे मतलब सिग्निफिकेंटली? बिकॉज कैश की अब कंपनी को जरूरत भी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, एक तो हम कैपेक्स करेंगे और जो भी पैसा बचेगा वो आप ही को देंगे। हाँ, क्योंकि सर देखो इस साल हमारी आशा थी सर कि हम डेट फ्री हो गए हैं, और ये तो एक मैं खाली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर कि सर हम डेट फ्री हो गए हैं, अभी अपने पास 350 करोड़ कैश भी आ गया है, और कंपनी 800 850 करोड़ का कमाई करेगी एबिटा, तो हमारी तो यही आशा रहेगी कि आप डिविडेंड पे आउट प्लीज बढ़ाएं, बिकॉज डिविडेंड पे आउट सर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अगर आप कर देंगे तो सर उसका एक अलग फर्क पड़ेगा, इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग इज सर। मतलब ये खाली मैं विनती कर सकता हूँ आपके साथ। नहीं, आप जैसे विनती करते हैं, हमने भी बोर्ड को ये बताया है कि 100% ग्रोथ होना चाहिए डिविडेंड पे आउट के अंदर में भी सालाना। और आप अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 5 साल में हम 20% से स्टार्ट हुए थे, 170% तक पहुंच गए हैं। राइट, तो राइट। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पैसा है, कोई हमने बैंक तो खोल नहीं रखी है FD करने के लिए। तो बराबर है, जो है पाइप मैन्युफैक्चरर है, इसीलिए पिछले 2 साल से हम कैश के ऊपर में बैठे हुए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर में जो है जो भी रहेगा कैपेक्स के अलावा जितना हमको इमरजेंसी फंड है, उसके अलावा सारा जो है वो टैक्स अपने शेयर होल्डर के लिए ही होगा। अब वो किस फॉर्म में देंगे वो समय बताएगा। थैंक यू सर, एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1. I repeat, if any participant wishes to ask a question, you may press star and 1. We have our next question from the line of Farokh Pandole from Avesta Fund Management. Please go ahead. Yeah, hi Raju ji. Congratulations on very strong numbers. हमको ये एक चीज जानना था कि हमारा कैपेसिटी आज क्या है और वैल्यू एड कंपोनेंट क्या है, और 2 साल के बाद जब ये हमारा कैपेक्स हो जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ओवरऑल कैपेसिटी करीब जो है हमारा 1.2 मिलियन के आसपास है, और अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग करीब लास्ट 2 साल से कंटिन्यूसली 44% कर रहे हैं, और जो हमारी करीब 7 लाख टन की कैपेसिटी बढ़ रही है नेक्स्ट 2 मतलब बल्कि 2.5 साल के अंदर में, इसके अंदर में 50% से लेकर के 60% जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर में ही इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। सो ऐसा मान के चलिए ओवरऑल हमारा जो है 55 से लेकर के 60% जो है
हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रहेगा अगले 3 साल में, जो ओवरऑल रेवेन्यू का उसका कंपोनेंट का हिस्सा है। ग्रेट, थैंक यू राजू जी, ऑल द बेस्ट। Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1. We have our next question from the line of Anand Mundra from Soar Wealth. Please go ahead. गुड इवनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गुड रिजल्ट्स। सर मुझे समझना था कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा। आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं यूएस में, इसलिए। नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक ये टैरिफ वॉर चल रहा है, और मैं कोई इसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना इनपुट हमारे पास है, ये जो टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर में तो पॉजिटिव आएगा। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ इस सब टैरिफ पॉलिसी को लेकर के इंडिया यूएस का इसके अंदर में भी कोई न कोई अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा, ऐसा हमें लगता है। और ये काफी टाइम से ऑलरेडी डायलॉग चल रहा था, लेकिन जो कुछ भी ये पाकिस्तान के साथ हुआ पिछले 10-15 दिन में, इसलिए इसमें थोड़ा डिले हुआ है। और दूसरा जो है, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, हमारे ऊपर तो ऑलरेडी इतना बड़ा टैरिफ था, तो ये जो टैरिफ का रेट भी अनाउंसमेंट किया, उसमें भी जो है मतलब हमारे इस प्रोडक्ट को तो उसके अंदर में भी एंट्री मिल रही थी। और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर के कारण पूरा यूरोप, जर्मनी और पूरा यूएस, इन मार्केट के अंदर में जहाँ लाइटिंग प्रोडक्ट हम कभी डील नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ चाइना, अब वो लाइटिंग के अंदर में भी 50% का एक्सपोर्ट में ग्रोथ है। हालांकि बहुत नॉमिनल है, हम पूरे साल में जो है 40-50 करोड़ ही करते हैं, बट जी से लेकर के मतलब बहुत जो मानी हुई लाइटिंग की कंपनियां हैं, उनके भी रेगुलर इंक्वायरी और वो अभी जो है एग्रीमेंट साइन करने को तैयार है, और उस पे हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और इसी तरह स्टील पाइप के अंदर में भी जो है मतलब हमारे को उस टैरिफ रेट में भी एंट्री मिल रहा था। और पार्टिकुलरली यूएस का मार्केट अगर हम देखें तो देखिए, सेक्शन पाइप वगैरह इंडिया में बना करके वहां तक पहुंचाना वो वाइबल भी नहीं रहता, उतना मार्जिन भी नहीं रहता, और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर उनको सूट भी नहीं करता, क्योंकि बहुत लॉजिस्टिकली बहुत लंबा समय लगता है। सो यूएस के अंदर में ये एपीआई पाइप का मार्केट ऐसा है जो बड़ा भी है और जिसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है। तो ये जो 19% की बजाय अभी 2.3% हमारे ऊपर में जो रेट आया है फाइनल हियरिंग में, तो इसके कारण एक बहुत बड़ा मार्केट का साइज हमारे लिए खुल जाता है। अब उसको हम कितना लिवरेज कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के और डायनेमिक्स थोड़े अलग हैं, सो हमको थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये जो टैरिफ वॉर चला, अल्टीमेटली इसका हिंदुस्तान को बेनिफिट होगा अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी। सर करेंटली सर एपीआई में कितना टैरिफ है? 2.3% सर। हाँ, हमारे ऊपर 2.3% है, क्योंकि पहले ये 19% था, तो हमने इसको फाइट किया था। सो अल्टीमेटली 2 साल बाद हेयरिंग होकर के हमारे ऊपर 2.3% पे ही लगा है, क्योंकि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड भी ये था कि हम सस्ता नहीं बेचते। सो वो अनलॉफुली सबके लिए इक्वल कर दिया था, तो हम उसके अंदर में हमारी विक्ट्री हुई है। तो सर पोस्ट दिस न्यू टैरिफ, वॉट एवर द एग्रीमेंट हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, सर उसमें अगर टैरिफ 10% हुआ तो अपने में भी 10 होगा या 15 होगा, तो वो अपन पास ऑन कर पाएंगे? नहीं, वो इन जनरल आप पूछ रहे हैं, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा सर? तो ये वो कॉमन होगा, वो ये इसके अलावा है, वो जो भी होगा वो आपके लिए कॉमन होगा। ये हमारी कंपनी के लिए स्पेसिफिक जो है 2.3 ही होगा। नहीं सर, अगर इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें 10% होता है ऑन योर प्रोडक्ट्स, तो एपीआई में तो आपके पे भी 10 लगेगा ना सर? नहीं, जो आप बोल रहे हैं, जो मान लीजिए 10% टैरिफ आता है वो सबके लिए होगा, लेकिन इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में जब 10 आएगा तब भी हमारे ऊपर 2.3 ही होगा। ओके
ओके ओके। और बाकियों के लिए जो 19 है, जिसने ये फाइट नहीं किया उसको 19 ही रहेगा। जब 10 आएगा तब भी उसको 19 ही पे करना पड़ेगा। ओके। आप सर ऐसी कितनी कंपनियों को सर ये 2.3% का स्पेशल रेट है? मैं बाकी का तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं इस बोर्ड पे तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं। ओके, अंडरस्टूड। सर एक क्वेश्चन और था लाइटिंग बिजनेस पे। आपने पहले पंप बोला था, पंप चालू करने वाले हैं, सर उसमें क्या अपडेट है सर उस बिजनेस में? नहीं, हमने चालू किया और इस साल करीब हमने लेट चालू किया, उसके बावजूद भी 8 करोड़ की सेल हमने की है। और मतलब अगले 3 साल के अंदर में 5% का मार्केट शेयर हमारा है। इस साल हम 25 करोड़ का करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो डोमेस्टिक पंप है, वो छोटा प्रोडक्ट है। तो करीब जो है मतलब हम लोग 55 करोड़ की सेल करेंगे अगले 2 साल में, तो करीब 5% मार्केट शेयर हमारी हो जाएगी। इस साल करीब 8 करोड़ की सेल हमने की है। ओके। एंड सर वायर्स एंड केबल्स में ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं, ये कौन से डोमेस्टिक वायर्स होंगे? केबल डोमेस्टिक वायर है, डोमेस्टिक वायर है। केबल क्योंकि प्रोजेक्ट में डील होता है, तो एक बार हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का सेगमेंट का जो साइज 400-500 करोड़ रहेगा, देन विल सी फॉर दैट केबल। जनरली हम क्या करते हैं, लुमिनर चालू किया, आज 500 करोड़ की सेल है। फैन अप्लायंसेस चालू किया, वो 400 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो गया। तो हम कुछ भी करते हैं तो एक साइजेबल बिजनेस हो, उसके बाद फिर हम अगला सोचते हैं। तो अभी हम सिर्फ डोमेस्टिक वायर पे ही डील करेंगे, जिसका करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। एंड ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होगा सर? नहीं, हम फुल्ली 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत 6-7% ही मार्जिन रहता है। अगर ये भी हम आउटसोर्स वो तो आउटसोर्स में तो वाइबिलिटी रहेगी ही नहीं। और बेस्ट प्रोडक्ट, और हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो अभी तक का जो प्रोडक्ट है उन सबको बेंचमार्क करके जो बेस्ट हो सकता है उसको हम डिलीवर करेंगे। एंड सर इसके लिए कितना कैपेक्स आपने एलोकेट किया है? 25 करोड़ रुपए, 15 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, और कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए हमको जो है करीब 10 करोड़ रुपए और चाहिए। बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं है, और एग्जिस्टिंग हमारे प्लांट फैसिलिटी में ही ये मतलब शेड वगैरह सब कुछ था, उसी में हमारा ये काम चल गया है। सर मैंने कॉल लेट ज्वाइन किया था। एक आखिरी क्वेश्चन है कि सर इन्वेंट्री गेन कितना हुआ होगा सर इस क्वार्टर में स्टील प्रोडक्ट्स में? 30 करोड़ क्या प्रिसाइजली मैं अभी पूछ रहा था, 30 करोड़ ही जो है हमारे को इन्वेंट्री गेन हुआ था इस क्वार्टर में। ओके। एंड सर एक डीमर्जर का काफी होप है सर, आई डोंट नो कब होगा, तो उसमें कुछ थॉट्स है सर आपके? नहीं, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि अब साइजेबल बिजनेस दोनों का हो गया है, और मुझे लगता है यही बेस्ट टाइम, राइट टाइम है। हम अपना परस्यू जितना करना चाहिए हम बोर्ड को कर रहे हैं, और मुझे लगता है सही टाइम पे जो है बोर्ड इसके ऊपर में निर्णय लेगी। बट हम बहुत स्ट्रांगली हर बार इसको रिकमेंड करते हैं कि सभी शेयर होल्डर की इच्छा है कि वैल्यू अनलॉक करने के लिए हमको डिमर्जर करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पेयर्स और बाकी कंपनियों से भी जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वैल्यू हमारी लॉक हुई है। उसको अनलॉक करने के लिए अब मुझे लगता है डिमर्जर ही एकमात्र समाधान है। धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट सर। होपफुली हम आपको कोशिश करेंगे जल्दी गुड न्यूज दें। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। Thank you. We have our next question from the line of Aditya Pal from MSA. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, Aditya, please go ahead. Thank you so much. Sir, many congratulations इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। एक सवाल है कि आपने गाइडेंस दिया है कि आप 1.06 मिलियन टन करोगे इन FY26, बट आपने मार्च में ही 1 लाख टन कर लिया है महीने का। तो मेरे को सिर्फ ये जानना है कि आप बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस तो नहीं दे रहे, बिकॉज आपके पास कैपेसिटी है, ग्वालियर में भी नया कैपेसिटी आ रहा है, जिसके वजह से 11-11.5 लाख टन तो आ ही जाना चाहिए। ऐसा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, आपको पता होगा। यस सर। और आप अभी शेयर होल्डर हो, मैं ज्यादा बताऊंगा कम आएगा तो आप वो
एसपी बन जाओगे, पुलिस वाला बन जाओगे। तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि थोड़ा कंजर्वेटिव ही नंबर रखें, और करेंगे तो वो अल्टीमेटली तो बुक्स ऑफ ग्राउंड पे तो आना ही है उसने। बट फिर भी, क्योंकि क्या होता है कि सारा समय एक जैसा नहीं होता है। ये देखिए, अभी पाकिस्तान अचानक ये आ गया, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तो इतने बड़े देश में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट फिर भी हमारी कैपेसिटी और जो मार्केट का ट्रेंड है और हमारी जो कैपेबिलिटी है, और उसमें भी हम, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे पता है आज हम हर महीने जो है 1.25 लाख टन भी पाइप बेच सकते हैं, लेकिन 25,000 टन पाइप मैं वो बेचूंगा जिसमें मेरी कॉस्ट भी हार्डली रिकवर होती है। तो अननेसेसरी एक्टिविटी बढ़ा करके क्या फायदा। हम ये चाहते हैं कि काम वो जिसके अंदर में मार्जिन भी बने। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम 1.1 मिलियन ये मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव जरूर है, लेकिन हम इसको अचीव करेंगे। और 780 से 800 करोड़ के आसपास का ये भी कंजर्वेटिव कह सकते हैं, लेकिन हम इसको अचीव करेंगे। ठीक है सर, ये एक बुक कीपिंग क्वेश्चन है। ये साल FY25 में हमारा ग्रॉस मार्जिन स्टील एंड पाइप सेगमेंट में क्या है, लाइटिंग एंड कंज्यूमर में क्या है? ऐसा है कि जैसे मार्जिन ना, ग्रॉस मार्जिन EBITDA मार्जिन नहीं, ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन जो है ओवरऑल कितना है? ओवरऑल के 24.2% है सर। हाँ, 24 टू डिवीजन और लाइटिंग डिवीजन एक साथ है, बट स्टील पाइप में बहुत कम रहता है। उसके बावजूद भी अगर पेयर से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा अच्छा जो है मार्जिन्स में भी, EBITDA मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है। मैं तो नंबर तक आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है दोनों में? ग्रॉस मार्जिन हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ, वो ऑलमोस्ट वही है। ऐसा है कि लाइटिंग डिवीजन में 38% है ग्रॉस मार्जिन। सो ये 38 to 40 के रेंज में ही रहता है, और स्टील डिवीजन के अंदर में 21% हुआ है अभी। अच्छा सर जी। ये साल हमने हमारा पावर फ्यूल एक्सपेंसेस कितना था? पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, एक 128 करोड़। अच्छा सर। अच्छा, ये जो हमारा जो अदर नीचे के खर्चे हैं वो बहुत जोर से बढ़े, वो बहुत काफी स्टीपली इंक्रीज हुआ है। ये तो मैन पावर कॉस्ट है, और बहुत सब्सटेंशियली कोई मतलब बड़ा नहीं है। 750 करोड़ का 786 करोड़ ही हुआ है, मतलब 752 करोड़ के अगेंस्ट में जो है, और 786 ही हुआ है। बहुत सब्सटेंशियल नहीं है। और हमारी तो ये पॉलिसी, हम जितना भी इंक्रीमेंट देते हैं हम पहले प्लांट से और सब मार्केटिंग हेड से लिखवा लेते हैं। तो इंक्रीज हो रहा है, आप कुछ न कुछ जो है कॉस्ट रिडक्शन का प्लान बताओगे, और जो जितना कॉस्ट रिडक्शन का प्लान देते हैं हम उसको उतना इंक्रीमेंट देते हैं। अच्छा, जो हमारा वर्किंग कैपिटल डेज है, अगर मैं कंपनी लेवल पे देखूंगा, नॉट टॉकिंग अबाउट डिविजन, कंपनी लेवल पे देखूंगा, तो हमारा जो DSO है वो 6 दिन से बढ़ा है। इज देयर सम स्ट्रेटजी कि हम लोग ज्यादा माल बेचने की कोशिश में, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, ओवरऑल जो है नेट वर्किंग कैपिटल हमारी 65 दिन से कम होकर के 55 दिन है, और इन्वेंट्री जो है 48 डेज के अगेंस्ट में 38 डेज है। डेटर जो है 73 डेज के अगेंस्ट में 78 डेज है। क्रेडिटर जो है 22 डेज के थे, वो 21 दिन है। अच्छा, ठीक है सर। तो लास्ट मार्च में थोड़ा डेटर्स बढ़ते हैं क्योंकि लास्ट में सेल होती है, और मुझे लगता है लास्ट के साथ बैंक भी 1-2 दिन जो है हॉलीडे थी, 30 तारीख को समय था, 31 को। सो बहुत ओवरऑल जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर में इन्वेंट्री डेटर्स में ही इम्प्रूवमेंट है। अंडरस्टूड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी। Thank you.
A reminder to all participants, if you wish to ask a question, you may press star and one. I repeat, if any participant wishes to ask a question, you may press star and one. If you wish to ask a question, you may press star and one. We have our next question from the line of Mohammed Sheikh Sahil from IDBI Capital Markets. Please go ahead. Mohammed, are you there? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Hi sir, congratulations on a good set of number. सर आपका जो कैपेक्स का प्लान है 2 मिलियन कैपेसिटी पहुंचाने के अगले 2 साल में, तो सर इसका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना रहेगा? एक मिनट, हाँ, मतलब एडिशनल? हाँ सर, एडिशनल। टोटल एडिशनल बोल रहे हैं, टोटल बोल रहे हैं? सर एडिशनल करीब 3500 से 4000 करोड़ का रहेगा। अच्छा सर, और इसमें सर आपका फिर प्रोडक्ट इसमें 50 to 60% जो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट रहेगा। सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो है करीब 3500 से 4000 करोड़ के आसपास का रहेगा। और सर इसमें फिर आपका ओवरऑल EBITDA पर टन मूवमेंट कैसा रहेगा अगले साल 2 सालों में? क्या टारगेट करता है मतलब, बट ये है कि ग्रेजुअली अगर आप देखें 4000 से बढ़ते बढ़ते 5400 पे आए तो मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि मतलब एनुअली देखिए 200 से लेके 400 रुपये पर टन के आसपास का इम्प्रूवमेंट मार्केट में दिखता है। और जैसे जैसे ये स्टील पाइप के अंदर में भी स्टेबिलिटी आ रही है, पहले इसमें भी बहुत सारे जो है ये पत्रा एंड ऑल दिस प्रोडक्ट्स में डील जो करते थे वो ग्रेजुअली मार्केट से आउट हो रहा है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं और ग्रेजुअली इसमें मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो बट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मतलब साल बाय साल जो है थोड़ा ये भी रहता है कि आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी में कैसा डील किया आपने, बट फिर भी एनुअली 200-300 रुपये का जो है इम्प्रूवमेंट आपको नजर आता है। अच्छा सर, तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी है जो हम लोग ज्यादा फोकस में रखेंगे, डील्स हायर मार्जिन, ऐसा कुछ ऐसा प्लान? गैल्वेनाइज की कैपेसिटी अभी भी हमारे पास स्पेयर है करीब 25 से 30% के आसपास, वो तो हमारा एक है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो लार्ज डाया पाइप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, जो बड़े जो है मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो चाहे पीएससी हो चाहे एयरपोर्ट हो इन सब के अंदर में, सो एक लार्ज जो है मतलब जो डीएफटी से हम बनाते हैं बड़े साइज के प्रोजेक्ट के पाइप, गैल्वेनाइज पाइप, एपीआई पाइप और एक्सपोर्ट, और इन सब के अलावा जो है स्पाइरल पाइप, ये हमारे 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे हाई वैल्यू एडेड भी है, हाई वैल्यू मार्जिन वाले भी है और हमारा फोकस भी है। और इसके अंदर में मार्केट का मतलब हर कोई कॉम्पीट भी नहीं कर सकता, बहुत सेलेक्टेड 5-6 प्लेयर ही है जो इस पे डील करते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा अगर ये टैरिफ वार थोड़ा चाइना इधर उधर के साथ यूएस का रहा तो उसके बाद जो है मतलब काफी अच्छा मतलब इंडिया के लिए स्टोरी बन सकती है। ओके सर, लास्टली आपका डिमांड के साइड आउटलुक कैसा लग रहा है स्ट्रक्चरल पाइप्स में डोमेस्टिक मार्केट में? अच्छा, स्ट्रक्चरल पाइप के अंदर पे तो 20% के आसपास है एनुअल ग्रोथ, और गैल्वेनाइज के अंदर में जो है वो उसमें करीब 4-5% के आसपास डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा मानसून के ऊपर में भी। एक्सपोर्ट में भी पिछले 2 साल थोड़ा सा स्लैश था, लेकिन मुझे लगता है अब पिछले 3-4-6 महीने से थोड़ा उसमें भी ऑर्डर बैंक में बढ़ोतरी हुई है। और एपीआई एक सेगमेंट ऐसा है जिसके अंदर में हिंदुस्तान में अभी भी जो है ऑयल एंड गैस में काफी काम होना है, तो उस पर भी मुझे लगता है अगले 3 साल तो एटलीस्ट अच्छा वो रहेगा। सो ओवरऑल जो है वॉल्यूम में पाइप के अंदर में अगर देखा जाए तो 12 से 15% पुटिंग ऑल टुगेदर एक साथ, तो 12 से 15% के आसपास वॉल्यूम में ग्रोथ है। ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। Thank you. Well done.
Ladies and gentlemen, this would be the last question for today, and I now hand the conference over to the management for closing comments. Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thanks to our MD and CEOs and other executives for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, contact SGA, our investor relation advisor. Thanks and good evening. Thank you very much. Thank you. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.